Hi everyone. Hello. Namaste. So sorry about the slight delay, but here we are. I hope you all are safe and healthy and taking good care of yourselves. I'm really glad that we have connected today. It's very important to keep reminding ourselves about the good things in life. The last few weeks have been phenomenal for me. We were overwhelmed to receive so many amazing, innovative, and refreshing entries from our Cochlear's Got Talent. Congratulations to the People's Choice winner, Dhanya, and Jury's Choice winner, Anish. It is very important to remember all of your entries were superb, and thank you all for participating. Today's guest is also another multi-talented recipient. Unnati, who is 11 years old, is a bilateral cochlear implant recipient. She likes to dance, paint, skate, play badminton, and carom. She participates actively in school and Science Olympiad Foundation competitions as well. She has her own YouTube channel by the name of Unnati the Cochlear Girl. She is very outgoing and adventurous who loves to travel. She aspires to become a mathematics professor when she grows up. Unnati is joined by her loving parents today. Her mom, Vishali, is a maths teacher and dad, Nitin, is an engineer. Thank you, Unnati, Vishali ji, and Nitin ji for taking out time to be with us today. We are happy to have you with us. Thank you, Smriti. We are the proud parents of Unnati. Myself, Nitin, she is Vaisali, and she is Unnati. Hello everyone, thank you for joining this one. I can see so many people who have joined us to speak to Unnati. To all of you attending this live on Facebook and Instagram, आज आपके पास एक मौका है कि सुपर हीरो उन्नति और उनके माता पिता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं. As always, we have a contest running for you all. Attendees who ask the most interesting questions on Facebook and Instagram will win something special. उन्नति, पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी. क्या आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? Yes. Namaste, my name is Unnati Patel. I am 11 years old. I am studying in class 7th. I am living in Gujarat, Gandhinagar, and I am bilateral implant. Thank you so much, Unnati, for sharing that. आप इतने सालों से कॉक्लियर इम्प्लांट रेसिपिएंट रही है. आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब रिपीट कर क्वेश्चंस को क्योंकि उन्नति, आप बहुत सालों से कॉक्लियर इम्प्लांट रेसिपिएंट रही है, तो आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, मेरा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहा है और मैं सारे अच्छे से वॉइस को सुन सकती हूँ और मैं सारे एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट कर सकती हूँ. It's so good to hear that, उन्नति. और आप सिर्फ 11 साल की है अभी और आप इतने एक्टिव है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे. तो आप प्लीज अपने यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? यस, मैंने यूट्यूब चैनल लास्ट ईयर से शुरू किया है और मुझे कई न्यू वीडियोस पोस्ट करना बहुत पसंद है और बचपन से मुझे यूट्यूब चैनल देखना बहुत पसंद है और मैंने अपने पापा से बोला कि अब मैं भी अपने चैनल को पोस्ट कर सकती हूँ वीडियोस को, तो मैंने अपने वीडियो को पोस्ट कर दिए और प्लीज वॉच माय वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल. माय चैनल नेम इज उन्नति द कॉक्लियर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. उन्नति, मैंने आपकी वीडियोस देखी है. आप एक सुपरस्टार है और आप इतना अच्छा डांस भी करते हैं. I would like to request audience to please subscribe Unnati's channel and see her videos. उन्नति, बहुत लोग आपको हाय बोल रहे हैं. ऑडियंस में बहुत लोग आपको हाय बोल रहे हैं. तो मैं सब लोग को हाय बोलना चाहती हूँ. हेलो एवरीवन.
उन्नति, आप काफी डांस वीडियोस भी पोस्ट करते हैं, तो अभी आजकल आप कोई डांस प्रिपेयर कर रहे हैं किसी सॉन्ग पे? हाँ, मुझे डांस करना बहुत पसंद है और म्यूजिक सुनना भी बहुत पसंद है। अभी मैं कर रही हूँ नदियों पार्क फ्रॉम रोही मूवी। वाह, प्लीज अपना वीडियो जरूर शेयर करना मेरे साथ, सबके साथ। नितिन जी, वैशाली जी, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो दैट जब उन्नति ने सुनना शुरू किया था, तब पहला शब्द उन्होंने क्या बोला था? जी, मैं पूरा लाइफ टाइम ये वर्ड याद रखूंगा। उसने पहला वर्ड बोला था बेम्मी, और उसके पीछे की कहानी वैशाली सुनाएगी। एक्चुअली में उन्नति ने बर्थ हुआ, मतलब जब भी बच्चे बोलना सीखते हैं तब से बोलना तो नहीं स्टार्ट किया, तो मतलब मैं खुद भी क्यूरियस थी कि मुझे कब मम्मी बुलाएगी। लेकिन जब उसका स्पीच थेरेपी चालू हुआ तो वो मम्मी तो नहीं बोला, लेकिन बेम्मी जरूर बोला उसने। लेकिन हम दोनों ने मिलके उसको सेलिब्रेट किया। हम लोग गए, मतलब पेस्ट्रीज लिया उन्नति की चॉइस की। मेरे हस्बैंड ने फोन किया कि कहीं बाहर हो, बाहर की आवाज सुन के बोला हाँ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से कि उन्नति ने फर्स्ट टाइम मुझे मम्मी बुलाया और बेम्मी बेम्मी नाम से बुलाया। इट्स माय फेवरेट वन। वाओ, आई एम श्योर ये आपका सबसे बेस्ट मोमेंट रहा होगा, आपका मेमोरेबल। जी, संतोष जी ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा है कि उन्नति, आपका बायलैटरल कब हुआ था? आपका दूसरे कान का सर्जरी कब हुआ था? दूसरे कांसुटू मैंने लॉकडाउन से बाद हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे वॉइस फिर कॉकलिंग इम्प्लांट के कांसुटू के लास्ट ईयर उसका कंसर्ट लगा था। लॉकडाउन के तुरंत बाद ही हमने डिसाइड किया कि हाँ हमें करना चाहिए, क्योंकि उसकी स्पीच बहुत अच्छी थी, तो एक वन साइड से क्यों सुने। तो हमने डिसाइड किया, थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था इसलिए थोड़ा लेट हुआ, लेकिन देन वी डिसाइड कि हम दूसरी साइड भी करने हैं। लकीली कंसर्ट उसी टाइम पे लॉन्च हुआ। सो इन लॉकडाउन वी हैव डिसाइडेड दैट वी गो फॉर हर सेकंड इम्प्लांट। तो लास्ट ईयर नवंबर में उसका सेकंड इम्प्लांट हुआ। आई मीन आपने लॉकडाउन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। आप थोड़ा उन्नति के हेयरिंग जर्नी के बारे में बता सकते हैं, जब से उसका फर्स्ट इम्प्लांट हुआ है? जी, जब 3 साल की थी तब उसका फर्स्ट इम्प्लांट हुआ। फिर इमीडिएट उसकी स्पीच थेरेपी चालू हुई और एकेडमिक भी उसका इमीडिएट उसी टाइम पे शुरू हुआ। शी एडप्ट द डिवाइस क्वाइट वेल। उसने कभी भी हेजिटेट नहीं किया और स्कूल में भी वो अपने आप फ्रेंड बनाती रही, अपने आप इम्प्रोवाइज करती रही और धीरे धीरे जर्नी बहुत आगे बढ़ी। वो अभी तक बहुत सारे माइलस्टोन अचीव कर चुकी है एंड वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ हर। और कांसोटू का भी उसको immediate she has adapted, and speech therapists also give a good response and help and advice also. So and the journey still continue. I would like to thank you both for putting up efforts for उन्नति। आज उन्नति इतना अच्छा कर रही है तो आप सबके efforts के वजह से ही है। और जब उन्नति ने दूसरे कान का इम्प्लांट कराया तो आपको कोई डिफरेंस दिखा सेकेंड और फर्स्ट में? जी बिल्कुल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले साउंड को रिकॉग्नाइज तो कर लेती थी, लेकिन सराउंड साउंड कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है उसमें थोड़ा उसको दिक्कत आ रही थी और उसने सामने से ही बोला। वो वैशाली आगे बताएगी। एक्चुअली में उन्नति ने जैसे कांसर्ट टू करवाया उसके बाद जैसे पेरेंट्स के बीच में बात होती है तो वो अपने से अलग हो जाती थी पहले, कांसर्ट टू से पहले। लेकिन कांसो 2 करवाने के बाद, दूसरा इम्प्लांट करवाने के बाद वो खुद ही इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, खुद ही अंदर मतलब बात कर रहे तो वो खुद ही अपना ओपिनियन रखती है, इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, सॉन्ग को अच्छे से गाती है, एक एक वर्डिंग टू वर्डिंग तो वो खुद पकड़ती है। वो मुझे ज्यादा अच्छा रहा, वो मुझे खुद को इम्प्रूवमेंट उसमें ज्यादा लगा। Thank you so much for sharing. It's so motivating and inspiring. Unnati, please keep doing all this, and Nitin ji, Vaishali, please keep sharing, please keep putting all these efforts. उन्नति, आपकी एक फ्रेंड है जिया जो फेसबुक पे है और वो आपको हाय बोल रही है। हेलो जिया।
I would like to request audience to please keep on sharing questions. I'm sure Unnati and her parents will be more than happy to answer them. गुरजस ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा है, उन्नति आजकल सब ऑनलाइन स्कूल अटेंड कर रहे हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? अगर मुझे ऑनलाइन क्लास में कुछ तकलीफ होती है वॉइस पे तो मैं उसको मिनी माइक यूज करती हूँ। ओके, तो मिनी माइक से आपको क्लैरिटी और ज्यादा आती है? हाँ, और मैं सारे वर्ड्स को मैं इससे सुन सकती हूँ क्या मैम बोल रहे हैं। ओके, नितिन जी, वैशाली जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इस पे कि उन्नति ऑनलाइन क्लासेस कैसे मैनेज कर रही है? जी, पहले जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ तो एज ए पेरेंट्स हमें भी थोड़ी दिक्कत आई कि कैसे करेंगे बच्चे, क्योंकि क्लास में पढ़ना और घर पे पढ़ना वो था द डिफरेंट थिंग। बट ये न्यू नॉर्मल को इसने बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया एंड वी आर ऑल्सो फेमिलियर टू दैट। अभी तो मतलब वो भी ऑनलाइन क्लास लेना ही पसंद करेगी, क्योंकि एसी में बैठना है, आराम से लेक्चर लेना है, और उसे कुछ भी डाउट वगैरह हो तो सी इज नॉट हेजिटेटिंग टू आस्क एनी क्वेश्चन। वो इमीडिएटली ऑनलाइन क्लास में भी हैंड रेज करके, और बाकी की बहुत सारी एक्टिविटी में जैसे कि लॉर्ड्स प्रेयर उसको डेली बोलना है तो वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकती है, और अच्छा है एकेडमिक में भी शी इज डूइंग क्वाइट गुड। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन स्कूल जाने बहुत डिफरेंस होता है। और जैसे उन्नति ने बोला मिनी माइक यूज करना, मैं भी मिनी माइक यूज करती हूँ अपने जो ऑफिस के मीटिंग्स होती है मेरी, या मुझे कुछ वीडियोस देखना होता है तो बहुत हेल्प करता है मिनी माइक हम जैसे बच्चों को। अनुराधा है जिन्होंने फेसबुक पे क्वेश्चन पूछा है कि उनकी बेटी भी 11 साल की है और स्पीच एकदम क्लियर है, बट वो ये जानना चाहती है कि उन्नति बाजार में आवाज क्लियर सुन पाती है, जैसे या कोई क्राउडेड एरिया होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा रश होता है या बहुत सारे लोग साथ में बात कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पे अच्छे से सुन पाती है, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाती है? जी, वो काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाती है, एटलीस्ट क्राउडेड एरिया हो या फिर कहीं पर भी हो, तो दूर से बुलाने पर भी वो काफी अच्छे से वो रिस्पॉन्ड कर पाती है। दोनों साइड कॉकलर करवाने के बाद तो काफी फर्क है उसमें भी, और पहले इतना मतलब हमें खुद को भी रहता था, लेकिन दोनों साइड का कॉकलर इम्प्लांट के बाद तो काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है, जब मेरी बेटी स्विमिंग करती थी तो मेरे पास मिनी माइक रहता था उन्नति का, मैं पैर कर देती थी तो उन्नति स्विमिंग करती थी, उस टाइम पे भी मैं उसके साथ अच्छे से बात कर पाती। वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, उसके लिए भी प्लस पॉइंट था। आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू कि दोनों कानों के इम्प्लांट के बाद बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब मेरा भी 6 साल के गैप में हुआ था दूसरे कान का, तो मेरे को वो डिफरेंस पता चलता है कि आवाज कहाँ से आ रही है कितना, तो आई एम श्योर वो एक चीज उन्नति को हेल्प कर रही होगी। और उन्नति, बहुत लोग ऑलरेडी आपका YouTube चैनल देख रहे हैं, आपके डेफिनेटली सब्सक्राइबर इंक्रीज होने वाले अब इस सेशन के बाद। यस। बेहान ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा है, नितिन जी, वैशाली जी, आपके लिए है कि आपको ऐसा लगता है कि कॉकलियर इम्प्लांट ने आपकी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाया है? डेफिनेटली, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, अब देखिए वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी हमारे डोर स्टेप पे आ गई है। पहले तो जब हमने पहला इम्प्लांट करवाया था तब इतना नॉलेज भी नहीं था और इतना मटेरियल भी हमारे पास नहीं था कि हम जान पाए या कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। इवन वी डोंट हैव एनी से सीनियर और से मॉडल ऑल्सो। बट जैसे ही उसका इम्प्लांट हुआ धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस भी ज्यादा हुई, और हाँ डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। तो कॉकलियर इज डूइंग सो गुड। कॉकलियर इम्प्लांट अगर आपके ऑडियोलॉजिस्ट बता रहे हैं तो यू विदाउट एनी हेजिटेशन आप फॉलो कीजिए, क्योंकि दे आर द मास्टर इन दिस फील्ड और आपको करना ही चाहिए ये सब। एक्चुअली में उन्नति का एकेडमिक में देखने जाए तो जब भी उसको नहीं समझ में आता है जो टॉपिक, लॉकडाउन टाइम पे मैंने ये चीज देखी, 6th स्टैंडर्ड में थी तब भी, वो जो चीज नहीं समझ में आती है तो वो अपने आप से यूट्यूब से वीडियो निकालेगी या फिर गूगल सर्च करेगी, उसको रीड करेगी या फिर उसको समझने के ट्राई करेगी।
और कोई भी स्टोरी है हिंदी में तो वो स्कूल में चलने के बाद, ऑनलाइन क्लास में चलने के बाद भी वो वापस यूट्यूब पे देखेगी, उसके लर्न इंस्टा जैसी चीजें, उसमें से उसके क्वेश्चन आंसर्स निकाल के करेगी। मतलब वो अपने आप से सारा कर पाती, बस मुझे सिर्फ एक बार देखना पड़ता है बाकी, और वो अपने आप से सब कुछ कर लेती। I highly appreciate your efforts. I applaud your efforts. And उन्नति जैसे आप कर रहे हो, प्लीज ऐसे ही करते रहना। आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, ऐसे ही मोटिवेट करते रहना हम सबको। वैशाली जी, नितिन जी, स्मिता है एक इंस्टाग्राम पे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, what is your advice for a parent who has been advised to do cochlear implant for child? यस, अगर डायग्नोसिस में हियरिंग लॉस का दिखा रहा है तो डोंट बी हेजिटेट, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन है और एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है अपने बच्चे को नॉर्मल से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप जैसे जैसे यूज करोगे पता चलेगा कि इट इज अपने बच्चे को ये नॉर्मल नहीं बनाता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। क्योंकि आप देखिए, ये टेक्नोलॉजी अभी आपके पास है, आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, उसका सॉल्यूशन है, तो गो फॉर इट। हो सके तो दोनों साइड पे इम्प्लांट करवाइए, नहीं तो एक साइड पे भी आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट से बात करके, स्पीच थेरेपिस्ट की एडवाइस लेके, होम एफर्ट पूरा देके आप करवा सकते हैं। एंड अगर डायग्नोसिस में आया है तो वो कर लीजिए। और मेरी एक एडवाइस ये है कि अर्ली इंटरवेंशन में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना आप डिटेक्ट जल्दी कर पाओगे, कम एज में कर पाओगे, उतना बच्चे को भी बेनिफिशिएट होगा और उसका रिजल्ट भी आएगा। एक्चुअली में जितना जल्दी, सर ने जैसे बोला वैसे ही, जितना जल्दी बच्चों को मिलता है उतना ही अच्छा उसको थेरापी भी मिलता है। जितने लेट जितना जाएगा थेरापी में, उतनी प्रोनाउन में थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगा। बेटर देन द बेस्ट, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करवाइए, और जितनी ही जल्दी थेरापी स्टार्ट करवाइए आप, तो बच्चे के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। I completely echo with your sentiments and मेरा इम्प्लांट 4 साल की उम्र में हुआ था, और उस टाइम पे क्योंकि अवेयरनेस लो थी तो इसलिए डिले हुआ था, और मैं विश करती हूँ काश मेरा जल्दी हो जाता उस टाइम पे। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन थेरेपी ऑल्सो, जितना जल्दी कर सको उतना बेटर है। नितिन जी, वैशाली जी, प्रिया ने फेसबुक पे क्वेश्चन पूछा है कि वो भी एक उनकी भी बच्चे एक कॉक्लियर इम्प्लांटी है, और वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि उन्नति की हेयरिंग जर्नी में आपका सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पार्ट क्या था, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे? जी, मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट इम्प्लांट के वक्त इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि कॉक्लियर इम्प्लांट क्या है। फिर मैंने जब भी डायग्नोसिस हुआ और हियरिंग लॉस का पता चला, एंड अवर ऑडियोलॉजिस्ट एडवाइस के आप इम्प्लांट ही करवाइए, तब जाके थोड़ा गूगल में से देखा व्हाट इज कॉक्लियर इम्प्लांट, उसके रिगार्डिंग क्या होता है, क्या डिवाइस लगाना पड़ता है। लेकिन जब से जैसे मैं नॉलेज एनहांस करता रहा तो मुझे पता चला कि ये तो जैसे हम चश्मे के नंबर आते हैं आईज पे, वैसा ही ये इट इज द डिवाइस दैट आप कान पे लगाते हैं, ये कान के चश्मे ही हो गए हैं। ये ब्लडलेस सर्जरी है, इतना कोई मेडिकल उनको प्रॉब्लम भी नहीं होता है बच्चे को, और 1 या 2 दिन में वो हॉस्पिटल से घर भी आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद स्पीच थेरेपी का जो है वो क्यूमुलेटिव एफर्ट है, सब का एफर्ट उसके बाद शुरू होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बच्चे भी कॉक्लियर इम्प्लांट है, वो भी अच्छे कर रहे होंगे, आई होप सो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आई कंप्लीटली रिलेट टू यू। थेरेपी और थेरेपी बहुत जरूरी है इस टाइम पे, और जितना जल्दी करवाओ उतना बेटर है। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट एवरीवन टू कंसल्ट देयर ऑडियोलॉजिस्ट, देयर थेरेपिस्ट, टू if you need any kind of guidance. रीना ने इंस्टाग्राम पे पूछा है कि उन्नति क्या थिएटर में मूवीज देख सकती है अच्छे से? उन्नति बताओ बेटा। मैं थिएटर से अच्छे से मूवी देख सकती हूँ। उन्नति को बहुत पसंद है मूवी देखना, घर पे भी उतना ही है, और वहाँ थिएटर में जाकर देखना उसको बहुत पसंद है। उन्नति, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी रोही मूवी है, पर ये नई मूवी आई है
और मैं इसको देखना चाहती हूँ, और कोरोना वायरस से मैं फिल्म में नहीं जा पाई, और फॉर्म में हम देख सकते हैं। हाँ, आई एम श्योर जो जो अभी मूवीज रिलीज हो रहे हैं वो ऑनलाइन भी आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। उन्नति, आपके ऑलरेडी बहुत सारे फैंस बन गए हैं, हमें बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। नीमा आपके फ्रेंड है एक जो आपको हाय बोल रही है फेसबुक से। हाय नीना। और तनुजा और राम ने क्वेश्चन पूछा है वैशाली जी आपसे स्पेसिफिकली कि आप कोई थेरेपी टिप्स शेयर करना चाहेंगे जो आपने फॉलो किया है उन्नति के लिए? जी, एक्चुअली में मुझे थेरापिस्ट बहुत अच्छे मिले। मुझे जैसे ही उन्नति का स्टार्ट हुआ जर्नी, तो वैसे ही थेरापिस्ट ने जितना जितना उन्होंने मुझे बताया उसी थ्रू में गई। लेकिन एक बात ये भी है कि थेरापी में मतलब फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक और चीज है कि जितना हम अपने बच्चों को खुद ही जानते हैं, और कितना और कोई नहीं जानता जितना हम अपने बच्चे को जानते हैं। जितना थेरापिस्ट करवाते हैं, वो जो इतना हमें वर्क देते हैं, आप अपने हिसाब से आप अपने बच्चे को देखो क्या वो किस तरीके से वो पसंद करता है, उस हिसाब से जाओ, सबसे अच्छा है। हमारे टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था थेरापी का, तब इतना एडवांटेज नहीं था, सिर्फ कार्ड्स मिलते थे। तो उस टाइम पे कार्ड्स और फोन का है, फिर बुक्स है, उसी से मैं गई थी। लेकिन साथ में जैसे लाइव दिखाना है, जू है, फिर पार्क है, वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट्स मार्केट्स है, जितना वो दिखाया वो ज्यादा बच्चे हम एनहांस कर पाएंगे। उन्नति को पेंटिंग है, वो सब क्रिएटिव चीजें बहुत पसंद है, इसलिए घर में कलर करवा कर सारे वर्ड सिखाना, या फिर मिट्टी में खिलवा कर, मतलब एक ही चीज पे मत जाइए आप। मैं तो कहती हूँ जितना बच्चे को इनोवेट कर पाओगे, जितना कुछ नया ढूंढ पाओगे, उतना बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। वो थेरापी से भागेगा नहीं, वो खुशी खुशी करे। Thank you so much for sharing that suggestion. I am sure it will help lot of parents, those who are attending this session. And आपने बिल्कुल सही कहा कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और जितना रियल लाइफ से आप उनको एक्सपोज करोगे उतना जल्दी वो सीखेंगे। और उन्नति, अभी आपकी मम्मा ने कहा कि आप पेंटिंग करती हैं, आपको बहुत पसंद है पेंटिंग, तो आप अपना दिखा सकते हैं कुछ आर्ट, हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं? श्योर। ये मैंने लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के समय पेंटिंग किए हैं। वाओ। और ये मैंने दोनों जो पेंटिंग मैंने आपको फर्स्ट दिखाया वो मैंने क्रेयॉन से किए हैं। It's so good, it's so impressive, और कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके जो आपने यूज किए। हाँ, वो मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करके किए हैं। और दिस वन, और ये आप कहीं से देख के बनाते हैं पेंटिंग्स? हाँ, मैं वीडियो में से देख के ही बनाती हूँ। अगर कुछ मैं अपने मन से बोलूँ कि मुझे देखने के बिना मैं कर सकती हूँ, बिना देख के भी। और ये मैंने ट्राई किया, ये मेरी सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोज पेंटिंग्स उन्नति। आप बहुत अच्छा पेंट करते हैं, आप प्लीज मुझे भी किसी दिन सिखाइएगा। ठीक है। और रोशनी ने इंस्टाग्राम पे बोला है, उन्नति, यू मेक अस ऑल इम्प्लांटीज प्राउड। इसमें से आपका हार्ड वर्क है, आपके पेरेंट्स का हार्ड वर्क है। मोर पावर टू यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much, Roshni, for sharing that, and I wish you all the very best. मोहम्मद अनवर ने फेसबुक पे प्रश्न पूछा है कि उन्नति का जब सेकेंड इम्प्लांट हुआ था तो उनकी स्पीच में इम्प्रूवमेंट आया है? जी, अनवर जी को पहले तो रमजान मुबारक। हाँ, डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और उसको कई चीजें क्या कुछ एनवायरनमेंट में उसको दोबारा पूछना पड़ता था कि हाँ पापा क्या बोला आपने, लेकिन आफ्टर कांसो वो नॉइजी एटमॉस्फेयर में भी, और अभी लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें भी शी इज पार्टिसिपेटिंग
गुड, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा, उसको खुद भी लगा कि हाँ नॉइज इज कमिंग सो गुड। जो एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया ना कि पहले वो सॉन्ग कोई सुन चल रहा है या फिर कोई डायलॉग चल रहा है तो वो सही से कैच नहीं कर पाती थी, मतलब वो वर्डिंग सही से कैच नहीं कर पाती थी, जो मतलब वो खुद ही बोले। लेकिन अब उन्नति आफ्टर कांसो 2 जब भी करवाया तभी उसके बाद उन्नति हर एक वर्डिंग को पकड़ती है। एटलीस्ट उन्नति को 2-3 बार वीडियो दिखा तो उसको डांस का वीडियो सब पसंद है, वो DIDS लाइक दिस, तो वो हर एक डायलॉग को भी याद रखी, उसके बाद वो भी बोलेंगे और उन्नति यहाँ से भी बोलेगी, मतलब वो हर चीज को कैचअप करने का ट्राई करती है उसके बाद तो, और सीखती है वो सीखती है। I'm so glad to hear that, and thank you so much for sharing that with me, with our audience. पीयूष ने फेसबुक पे क्वेश्चन पूछा है कि how did Unnati manage her sound processor in school? Did she face any issues? And वो उनको टेंशन हो रही है कि उनका बच्चा कहीं साउंड प्रोसेसर खो ना दे। जी नहीं, वो जूनियर सीनियर केजी से ही यूज कर रही है अपना प्रोसेसर, कहीं पे भी उसने ऐसा ड्रॉप ऑफ का या ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। हाँ, एज ए पेरेंट्स वी जस्ट हैव टू लुक कि बैटरी बैकअप ठीक हो जब तक कि क्लास खत्म ना हो जाए, एंड इफ देयर एनी रेनी सीजन और डस्टी सीजन इज देयर तो बच्चे को थोड़ा बताना पड़ेगा कि हाँ इससे थोड़ा मॉइस्चर से दूर रखे। अदरवाइज चाइल्ड इज एडप्टिंग द डिवाइस क्वाइट वेल। और अगर फ्रेंड्स में भी अगर ऐसा नहीं है कि वो कोई फ्रेंड्स अगर छू लेगा उसको तो बच्चा अपने आप वो हेजिटेट करेगा, वो रोकेगा, प्रोसेसर का ध्यान वो खुद रखेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि उसी से भी वो सुनाई देता है उसको। एक्चुअली बच्चे के लिए ये स्पेशली उनके लिए कान है, वो जैसे ही दूसरे तो वो अपना प्रोसेसर का वो खुद ही करेंगे बच्चे कि हाँ पता है कि इसकी वजह से वो लोग सुन पा रहे, तो वो अपने प्रोसेसर का वो खुद ही ध्यान रखते हैं। प्लस मेरी टाइम पे मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले और मैंने उनको बोल के रखा था स्पेशली कि उन्नति को कुछ प्रोसेसर में या फिर कुछ भी बैटरी में आपको लगता है कि वो खत्म हो गई है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, जस्ट कॉल मी। और उन्होंने हमेशा मुझे हेल्प किया और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टीचर्स हमेशा उनको हेल्प करेंगे। डोंट वरी। And I just want to add something. फर्स्ट सीट पे बैठने का प्रेफरेंस वगैरह आप टीचर को बता दीजिएगा। अदरवाइज योर चाइल्ड इज कुछ ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा, कर लेगा, डोंट वरी। I absolutely agree with you both. Thank you so much for sharing those motivating words. And पीयूष जी, आप जैसे अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है न्यूक्लियस 7 कांसो 2, आप उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी एक न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप में भी फीचर है फाइंड माय प्रोसेसर, आप उनके उसके माध्यम से भी आप प्रोसेसर अगर उनका कहीं गिर गया है तो आप वो भी आपको पता चल सकता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे लास्ट कनेक्ट हुआ था। रीना ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा है कि जब उन्नति का एक ही कान का इम्प्लांट हुआ था तब उन्होंने दूसरे कान में हेयरिंग एड का इस्तेमाल किया था। Smriti, I lost your voice. Can you please repeat the question? Yeah, I'll repeat that. So Reena is asking the question that when Unnati had her first implant, was she wearing hearing aids on the other ear? Yes, she is wearing hearing aid उसकी दूसरे साइड पे, लेकिन वो इतना एडवांटेज नहीं मिल रहा था उसका क्योंकि वॉइस क्वालिटी उसमें नहीं थी, लेकिन हाँ वो हियरिंग एड पहनती थी। Okay, and as a recipient also, I would like to share that it's important to keep other ear stimulated, but आप प्लीज अपने प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। सोनिया ने और कुछ लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा है और नितिन जी, वैशाली जी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप दोनों उन्नति के प्रोसेसर का कैसे ध्यान रखते हैं? जी, हर रोज उसका ध्यान रखना है, जैसे ही हम अपने मोबाइल का ध्यान रखते हैं, हमारे हर एक गैजेट का ध्यान रखते हैं, ये डिवाइस का भी ध्यान केयर करना है। कंपनी ने बहुत इजी कर लिया है, कांसो 2 में तो बहुत ही इजी कर लिया है, उसमें तो वायरलेस हो गया है, चार्जिंग भी, बैटरी लाइफ भी उसकी बहुत ज्यादा
बढ़ गई है, वाटर रेजिस्टेंस भी है वो, तो केयर तो करना है। उसमें जब भी साउंड प्रोसेसर को ड्राई बॉक्स में रखना है, अदरवाइज क्लीनिंग एंड एवरीथिंग इज वो आपको समझा भी देंगे, और पेरेंट्स के लिए इजी है। आप रोज का 5 या 10 मिनट का टाइम यू हैव टू स्पेंड, और वो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है क्योंकि साउंड क्वालिटी भी उससे अच्छी रहेगी। वो उसको वाइप ऑफ करना है, साउंड प्रोसेस माइक के ऊपर का जो कवर है वो 2-3 महीने में जो चेंज करना है, बाकी की सब चीजें यू हैव टू जस्ट मेंटेन। और ये शुरू में ऐसा लगेगा, अदरवाइज आपको रूटीन में लगेगा, ऐसा आपको लगेगा कि यू आर हैबिटेड टू दैट एंड रूटीन वर्क लगेगा। लेकिन एक्स्ट्रा केयर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी के प्रोसेसर आर बहुत अच्छे हो गए हैं। I absolutely agree with you, और ये बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे हम सब मोबाइल का, लैपटॉप का, इतनी महंगी महंगी चीजों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें साउंड प्रोसेसर का ध्यान रखना है। और ये तो उन्नति और मेरे जैसे और भी रेसिपिएंट्स के लिए, हमारे लिए तो कान है, तो बहुत जरूरी है इन सब का। और जैसे कि नितिन जी ने भी कहा कि आजकल के प्रोसेसर्स जिस तरह से आ रहे हैं, आपको ज्यादा समय नहीं देना। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी ये बता सकती हूँ, रोज का 5 मिनट भी बहुत है प्रोसेसर को एक अच्छे से क्लीन अप करके, और रात को उसको ड्राई बॉक्स में रखना है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि इम्प्लांट के बाद उन्नति ने कितने देर तक थेरेपी ली थी। जी, पहले इम्प्लांट के बाद उसकी थेरेपी ऑलमोस्ट 1 ईयर तक चली थी, लेकिन सेकंड इम्प्लांट जब लॉकडाउन चल रहा था तो हमने टेलीफोनिक ही थेरेपी ली, और जो इंस्ट्रक्शन थेरेपिस्ट ने दी थी वो फॉलो की थी। उसके बारे में वैशाली कैन एलैबोरेट मोर। एक्चुअली मैं उन्नति का पहले कॉकलर करवाया था, उससे पहले वो मशीन पहनती थी, तो उसके साथ भी उसकी थेरेपी चलती थी, और उसके बाद उसका थोड़ा सा हियरिंग लॉस हुआ, उसके बाद उसकी कॉकलियर इम्प्लांट करवाया था। और जैसे ही उन्नति फर्स्ट स्टैंडर्ड में आई, उसकी थेरेपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, इसलिए इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं। जितना थेरेपिस्ट बोले उस हिसाब से जाइए, सबसे बेस्ट चीज। Thank you so much for sharing that. Or I completely agree with you both. You should do what therapists are also saying, and for me, therapy never stops. कि आप कुछ साल आप थेरेपी देते हैं, कभी आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो मैं यही एडवाइस करूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप प्लीज उस पे भी वर्क करें। मैं आज भी थेरेपी लेती हूँ, कुछ भले रोज का 10 मिनट करती हूँ, बट और ज्यादा उससे इम्प्रूवमेंट हो जाता है। मोनिका ने फेसबुक पे क्वेश्चन पूछा है कि उन्नति का जो वॉइस है इतना क्लियर है, वो कैसे हुआ? Smriti, just repeat the question. I just lost your voice. Yeah. Monica on Facebook is asking the question that Unnati's voice is so clear, and she's asking that how all that happened. मोनिका जी, ये सभी लोगों का कंबाइंड एफर्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट का भी, होम एफर्ट भी, सारे एफर्ट हमें करने हैं। ऐसा नहीं है कि इम्प्लांट हो गया है तो बच्चा बोलने लगेगा, फॉरगेट इट। घर पे भी मोटिवेशन करना ही पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, और उसको सारे साउंड की एक्सपोजर जितनी जल्दी मिले उतना आपको यू हैव टू अरेंज दैट। और वैशाली कैन एक्चुअली मैं सही बताऊं स्मृति, तो जितना थेरापिस्ट बोलते थे उस हिसाब से करवा रही थी, प्लस जितना आप, मैं तो कहती हूँ पूरा फैमिली अगर आपके साथ है तो बेस्ट चीज, उतने ही बच्चों को वर्डिंग्स मिलेंगे, क्योंकि एक पर्सन वर्ड देता है, उससे ज्यादा पूरा फैमिली वर्ड्स देते हैं, तो बच्चों की वोकेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, तो उसमें बच्चे की स्पीच में ही फर्क पड़ता है। और बच्चे की स्पीच की क्लियरिटी की बात करूँ तो वो थेरापिस्ट आपको वर्ड देंगे में, और उसी हिसाब से आप जाइएगा, एक एक वर्डिंग टू वर्डिंग। क्योंकि पहले मैंने थेरापी करवाई थी, उस टाइम पे अलग था, अभी की थेरापी जो करवाते हैं वो बहुत बहुत एडवांस में है और बहुत अच्छे हैं, तो आप थेरापिस्ट के हिसाब से ही जाइए। मुझे एक चीज याद है, थेरापिस्ट ने बोला था कि आप बच्चों से जब बात करें इनिशियल स्टेज पे तो हाथ बांध के बात कीजिए, नो साइन लैंग्वेज कैन बी यूज, क्योंकि अगर बच्चे ने साइन लैंग्वेज पकड़ ली तो वो फिर स्पीच थेरेपी में ध्यान नहीं देगा। तो मेरे थेरापिस्ट ये बोलते थे, जितना स्पीच आप आगे से दे रहे हो वही स्पीच आप पीछे से भी दो, तो वही चीज उन्नति के साथ भी की थी कि जितना स्पीच आगे से दिया, मीन्स आगे फ्रंट में बिठा के, जब वो मेरे फेस देख रही है उस हिसाब से किया, और उन्नति को फिर टर्न करके फिर वो चीज पीछे से दिया, तो बच्चे को वो साइन लैंग्वेज और हमारी जो लिप रीडिंग है वो नहीं करेगा बच्चा।
आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया है। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चे को, जैसे नितिन जी ने बोला, उनको बिठा के मत रखिए, उनके साथ इशारों में बात मत कीजिए, उनसे जितना आप कैजुअली बात कर सकते हैं उतना बेटर होगा। और आप अपने थेरेपिस्ट के एडवाइस जरूर लीजिए, और जितना ज्यादा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज्यादा आपका बच्चा अच्छे से परफॉर्म करेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहती हूँ कि एज अ पेरेंट, आप हाउ डिड यू यूटिलाइज द लॉकडाउन पीरियड इफेक्टिवली टू हेल्प उन्नति बिकम मोर कॉन्फिडेंट? यस, जैसे मैंने पहले बताया, लॉकडाउन में ही हमने डिसीजन लिया कि उसका सेकंड साइड भी इम्प्लांट कराना चाहिए। और ये लॉकडाउन के टाइम की बात नहीं है, हमेशा यू हैव टू एंगेज विद द चिल्ड्रन। उसकी लाइक डिसलाइक का भी ध्यान रखना है, वो बच्चा कौन से वे में ज्यादा कंफर्टेबल है स्पीच थेरेपी में भी, और कहाँ वो उसका वो हेजिटेट हो रहा है या उसका जो है इम्प्रूवमेंट कम है, तो उसी एरिया को एज ए पेरेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और डोंट कंपेयर एनी चाइल्ड, किसी चाइल्ड से आप कंपेरिजन मत कीजिए, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज ग्रो जस्ट लाइक ट्री, जो ग्रो करते हैं वैसे ही हर एक बच्चा का नेचर अलग होगा, उसकी थेरेपी लेने का, बोलने का तरीका, बोलने का टाइम अलग होगा। लेकिन एज ए पेरेंट वो बच्चे में जहां जहां भी कमी है, दैट एरिया वी हैव टू फाइंड आउट, और उसके एरिया में ही हमें वर्क करना है। एंड अभी आप मेडिकल फील्ड की बात कीजिए या डिवाइस की बात कीजिए, एवरीथिंग इज एट द पीक ऑफ द बेस्ट। तो आप बाकी की वरीज है वो उन पे छोड़ दीजिए। एज ए पेरेंट आपको जो करना है वो आप उस पे करते रहिए। एक्चुअली में उन्नति के लॉकडाउन, उन्नति सीबीएसई बोर्ड में पढ़ती है, तो उनके स्कूल में गुजराती लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती, और हमारी मदर टंग एक्चुअली में गुजराती है। उन्नति बोलना और समझ सकती है गुजराती, लेकिन लिखना नहीं आता था। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोगों ने गुजराती लैंग्वेज पे काम किया था। उन्नति अभी लिखना और पढ़ना दोनों चीज गुजराती में कर सकती है। उन्नति इंस्टाग्राम पे भी मतलब काफी एक्टिव रहती है, उसको पसंद है, तो वो उसमें भी करती रहती कुछ ना कुछ। तो लॉकडाउन के टाइम पे कुछ ना कुछ नया सीखती है, नया करती है। It's so good to hear all of the efforts that you have made. Thank you so much for sharing. And as you rightly said, that every child is different. So parents are the best person to focus on their child. They know how their child will perform better. प्रियंका ने फेसबुक पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द चाइल्ड when he starts asking why he has implants or why she has implants and not others? Okay, तो मैंने वो भी पहले थोड़ा हिंट दे दिया था, बता दिया था कि अगर चश्मे के, अगर आंख के नंबर आएंगे, चश्मा पहनेंगे, तो वो उसके बेटर के लिए है, बेहतर के लिए ही है। तो वैसे ही हियरिंग एड है, वो उसके सुनने की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ाएगा, वो दूसरों के साथ नॉर्मल compete करने में, आई टू आई फेस कॉन्टेक्ट से कॉन्फिडेंस से खड़े रहने में मदद करेगा। तो वाई सोशल हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सोशल हेजिटेशन होता तो चश्मे भी कोई नहीं पहनता। तो ये कान के ही चश्मे हैं, आप जस्ट फॉरगेट एनीथिंग कि ये कुछ सर्जरी से लगा है, इम्प्लांट लगा है। अभी तो आप देखिए हार्ट में भी बहुत सारे इम्प्लांट आ गए हैं, बॉडी इम्प्लांट भी बहुत सारे हो गए हैं। तो सोशल फियर ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, कि मेरा बच्चा कॉकलेयर पहनेगा तो क्या सोचेगा। वो मत सोचिए, आप ये सोचिए कि ये पहनेगा तो वो सुनेगा तो वो अच्छा एकेडमिक कैरियर भी बना पाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंसली और अपना सेल्फ डिपेंडेंट होगा। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो इट इज मोर बेटर, मोर इन अ पॉजिटिव वे। अदरवाइज कोई नेगेटिव वे में सोचे कि इसके क्या होगा इन फ्यूचर, शी गॉट मैरिड और नॉट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी आपको दिमाग में आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा वो आपको नेगेटिव वे में ले जाएगा। आपके पूरे की पूरे एफर्ट बच्चे के सुनने के लिए ही होने चाहिए कि इसको क्या डेफिसिट है। अगर डायग्नोसिस में पता चल गया है कि उसको हियरिंग लॉस है, तो आप बेटर है कि कॉकलियर इम्प्लांट करवा दीजिए। टेक्नोलॉजी बहुत, गवर्नमेंट इज डूइंग आल्सो क्वाइट गुड, तो बहुत सारी हेल्प मिल रही है। तो बच्चे को इस चीज से वंचित मत रखिएगा, दूसरे कोई क्वेश्चन दिमाग में लाके। एक्चुअली में जो इनके बच्चे का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन उन्नति का भी था एक टाइम पे, कि मैं ये क्यों पहनती। तो उस टाइम पे
उन्नति को बहुत छोटी थी उस टाइम पे, बस एक ही चीज बोला था कि बेटा इससे आप बहुत सुंदर सुंदर सुन पाते हो, तो वो सभी को बोलती है मैं बहुत अच्छा सुन पाती हूँ तो मैं पहनती हूँ। बस उन्नति उस टाइम पे भी उतनी कॉन्फिडेंस थी, आज भी उतनी कॉन्फिडेंस है कि सी एक्सेप्ट दिस मशीन, और उसने उस टाइम पे अभी भी वो ये बोलती मैं अच्छे से सुन पा रही हूँ ना, दैट इज बेटर। आई थिंक उन्नति इसका ज्यादा आंसर सही से दे पाएगी। उन्नति, आपके फ्रेंड पूछते हैं तो आप क्या बताते हो? अगर फ्रेंड पूछते हैं कि मैं बोलती हूँ कि ये मेरे कॉकलियर डिवाइस है, और आपको पता है कि जैसे आप लोग जैसे अच्छे से सुन सकते हो वैसे मैं भी अच्छे से सुन सकती हूँ, और किस चीज क्वेश्चन पूछते हैं तो वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन बोलती हूँ। Thank you so much, Unnati, Nitin ji, Vaishali ji, for sharing that. It's so inspiring to hear all of this. And I'm sure it must be motivating for other parents as well. Reena on Instagram has said that Reena's grandson got his activation of unilateral nuclear 7 today. Many congratulations, Reena, and all the best for everything. उन्नति, आप जब बड़े होंगे आप क्या बनना चाहते हो? Smriti, you have to repeat it because your voice is cracked. उन्नति, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होके बहुत चीज कुछ बनना चाहती हूँ, एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, डांस टीचर बनना चाहती हूँ, और बहुत कुछ चीज बनना चाहती हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी को लव यू जिंदगी बोलना चाहती हूँ, जैसे आपने डियर जिंदगी मूवी देखी है वैसे ही अपनी जिंदगी को लव यू जिंदगी बोलना चाहती हूँ। It's so good to see you this confident, and I'm sure आप जो बनना चाहते हैं आपके ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे अगर आप उस पे आप जरूर वर्क कीजिएगा। आप ऑलरेडी स्टार है हम सबके लिए, आपको अब एक्सपीरियंस हो गए। शमीक ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा है, डज स्पीकिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम? Not at all. You just use the primary language for speech therapy, but more language are उसका confidence ही ज़्यादा बढ़ाएगा। और जितने not only languages, you can use more sound also, sound instrument also. उसको म्यूजिक अच्छे टीचर के पास लेके जा सकते हो। जितना साउंड एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा इज बेटर टू हैव। वो कंफ्यूज नहीं होगा बच्चा। छोटा बच्चा अगर आप बोले तो 4-5 लैंग्वेज में भी इजीली कर सकता है, तो आई डोंट थिंक उससे कुछ प्रॉब्लम होगा। एंड यू कैन एडवाइस स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आई थिंक दे गॉट द सेम आंसर। एक्चुअली में जब उन्नति की थेरेपी चल रही थी तभी थेरेपिस्ट ने बोला कि आपको 2 लैंग्वेज देनी है, एक मेन लैंग्वेज देन एक सब्सिडरी लैंग्वेज। उन्नति को भी 2 लैंग्वेज मिली थी, एक हमारी गुजराती लैंग्वेज और एक सब्सिडरी में इंग्लिश लैंग्वेज मिली थी साथ में, तो उसको आगे जाके एकेडमी में प्रॉब्लम ना। लेकिन जैसे ही उन्नति फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया तभी उनको बोल दिया था कि हम लोग गुजराती लैंग्वेज बिल्कुल नहीं चलाएंगे। विद इन 2 मंथ उन्नति ने हिंदी लैंग्वेज सीखी है पूरी, तो उसका पूरा स्पीच थेरेपी मैंने हिंदी और इंग्लिश में करवा दिया है। तो उसी टाइम पे उन्नति को 3 लैंग्वेज उसी टाइम पे भी आती थी, वो बोल पाती थी, समझ पाती थी। और आप जितने बच्चे छोटे होते हैं, जितनी लैंग्वेज अगर आपकी स्पीच थेरेपी खत्म हो गई, जितनी लैंग्वेज आप दोगे उतना ही बच्चे के लिए वो सही रहेगा और बच्चा उस टाइम पे सीख लेगा। लेकिन अभी अगर आप सीखने जाओ, इस एज में अगर हम सीखने जाए कोई न्यू लैंग्वेज, तो हमें थोड़ा प्रोनाउन में भी प्रॉब्लम रहेगा, समझने में भी प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जितने बच्चे छोटे रहेंगे और जितनी लैंग्वेज आप देना चाहे उतनी लैंग्वेज आप दे सकते। I completely echo with you, and I would like to also share my experience. I also started my speech therapy with Hindi language because घर पे सब हिंदी में ही बात करते थे, और सिंधी में भी, सिंधी मदर टंग है बट सिंधी यूज नहीं होनी थी, तो हिंदी में। और फिर मैंने एडमिशन मेन स्ट्रीम स्कूल में जब लिया तो इंग्लिश मीडियम में लिया था, तो फिर मैंने हिंदी से इंग्लिश में फिर स्विच किया, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई इतनी। वही है कि आप थेरेपी पे जितना आप एफर्ट्स डालेंगे बच्चे उतना इजीली सीख लेंगे। And also you are very active in this field, you know, in spreading the health awareness. How did you motivate Unnati to be active in this space? जी, हमने जब पहला इम्प्लांट करवाया था तो इसके बारे में एज ए पेरेंट्स हमको भी बहुत कम नॉलेज था, और
नॉलेज के लिए, हमें इंफॉर्मेशन के लिए गूगल का यूज करना पड़ा था। लेकिन जब हमारे उन्नति 4-5 साल की हो गई, तब उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, व्हाट्सएप वगैरह, तो हमने बहुत सारे फ्रेंड्स ने मिलकर ग्रुप बनाया, उसमें भी हम इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। और अभी उन्नति का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर भी हम अवेयरनेस डाल रहे हैं, उसके वीडियोस वगैरह रख रहे हैं कि जितना भी हो सके, ये एक उन्नति नहीं है, हमें बहुत सारी उन्नति हर घर में चाहिए, और कॉन्फिडेंस बच्चा हर में चाहिए कि वो अपने कोई भी हेजिटेशन ना रखे, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाले और उसका आंसर तुरंत मिले। क्योंकि हमारे टाइम पे थोड़ा वेट करना पड़ा था, हमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें नहीं मिलते थे, हमें ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता था। अभी आपके डोर स्टेप पे, आपके ऑन हैंड पे जो सारे क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज भी आपको कर लेना चाहिए। और उन्नति को भी हम एज ए पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं कि आप भी अवेयरनेस लाइए, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ हर्डल है, वो उसको पूरा करें। स्मृति, एक्चुअली में हम लोगों ने मैं जिस टाइम पे उन्नति का कॉकलर करवाया था, तो उस टाइम पे कोई इतना इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं थी। बस मेरी मम्मी के घर के पास एक बच्ची थी, उनसे जाके मिली। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ, मेरी बेटी भी क्यों नहीं कर पाती, मेरी बेटी भी क्यों नहीं आगे जाएगी। उस टाइम पे मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। गूगल में भी, अगर यूट्यूब पे भी देखो तो 2 या 3 उस टाइम पे वीडियो ज्यादा मिलते नहीं थे। तो उस टाइम पे जब मुझे खुद को लगा कि मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना करूं, हमसे जितना बन पड़े उतना किसी को हेल्प क्यों ना करें। और हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट किया था, एक मदर करके ग्रुप बनाया था। और जितने भी मदर्स न्यू मिल रहे हैं कि उनको थेरापी में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग मदर्स हैं, प्लस एक थेरापिस्ट भी है अच्छे से, तो वो भी हेल्प करते हैं। तो उस तरीके से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मदर्स को भी हेल्प मिल जाए, थेरापी में भी हेल्प मिले, तो वो चीज हम लोग रन कर रहे हैं। I had goosebumps hearing all of that, and I completely agree. Like 10 years back, 20 years back, the awareness was very low, and I really appreciate. I'm so glad that you're spreading awareness through social media, sharing Unnati's experience, and even Unnati has started her YouTube channel. It's so good to see Unnati this active in the health awareness space. Before we close, I'm happy to announce the winners of today's contest. Congratulations to Smitha Balakrishnan on Instagram. And congratulations to Priyanka Amit Jain on Facebook. Very well done, very amazing, interesting questions asked by you. Our team will get in touch with you to give your prizes. Thank you so much, Unnati, Vishali ji, Nitin ji, for joining us today. We are sure that your tips, your thoughts, inputs, suggestions will help many recipients like Unnati, including me. Our community is better because you are in it. Unnati, you are so special. I would love to give you a virtual hug right now. On behalf of our entire Cochlear family, we wish you lots of success for the future. Keep smiling, and thank you for all the contribution in spreading awareness around hearing loss and cochlear implants. Thank you so much for giving this platform. Thank you so much. Keep inspiring us. I would like to thank our audience for joining the live session. I hope that the information which was shared during the session will be of great benefit to you all. Thank you to my entire Cochlear family for being with us again today. See you all next month. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you so much for joining it and enjoy it. And आपको मिलते हैं next week को, और अपने घर पे stay रहें. Thank you.